Screen is visible to you? Yes, sir. Sir, नो सर, मेरे में नहीं आ रहा। Okay, so I just share the screen. Now it is visible. visual sir. नो सर। Yes, sir. Visual. Yes, sir. Clearly दिख रहा है. Okay, okay. अब दिख रहा सर। तो लास्ट क्लास हम लोग डीएमए ऑपरेशन देख रहे थे. डीएमए ऑपरेशन में और वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द वेरियस स्टेप्स रिलेटेड टू द डीएमए, ठीक है ना, in which the DMA operation basically occur in between the message passing between the DMA controller and the CPU. CPU और DMA controller के बीच में मैसेज पासिंग के बाद ये इनिशिएट होता है. So DMA controller passes the request to the CPU and CPU just responds that request and give the acknowledgement to the DMA controller to direct handle the buses for transferring of data from one location to another location. Now बेसिकली डीएमए कंट्रोलर जो सेशन है हम लोग डिस्कस किए कि ट्रांसफरिंग ऑफ डेटा अकर इन बिटवीन द सीपीयू एंड मेमोरी, सीपीयू एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. डेटा ट्रांसफरिंग बेसिकली इन्हीं तीनों के बीच में होता है, सीपीयू, मेमोरी और पेरिफेरल्स. तो जब आपका सीपीयू और मेमोरी या सीपीयू या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में डेटा ट्रांसफरिंग होता है तो देयर इज ए कांसेप्ट वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द प्रोग्राम डेटा ट्रांसफर स्कीम. तो अंडर प्रोग्राम डेटा ट्रांसफर स्कीम द सीपीयू इंटरफेरेंस इज देयर because without CPU no data is transferred from one location to another location. But in case of memory to peripheral data transferring, यानी मेमोरी से पेरिफेरल में, पेरिफेरल से मेमोरी में डेटा ट्रांसफर जब करते हैं तो वहां पर आपका CPU इंटरफेरेंस की कोई जरूरत नहीं है. दैट्स व्हाई देयर इज ए नीड ऑफ डीएमए डेटा ट्रांसफर स्कीम, और इसलिए हम लोग डीएमए डेटा ट्रांसफर स्कीम जो है वो यूज करते हैं डीएमए कंट्रोलर के असिस्टेंस में. तो हमारा जो सिस्टम है वो तीन तरह के मोड को के में आपका डीएमए कंट्रोलर को ऑपरेट करता है. देयर इज ए बर्स्ट मोड, देयर इज ए साइकिल स्टीलिंग मोड एंड देयर इज ए ट्रांसपेरेंट मोड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल in DMA controller we discuss the mode of DMA. Mode of DMA operation. So there is basically three mode: burst mode, cycle stealing mode, and transparent mode. बस्ट मोड एक्चुअली क्या है? एक्चुअली जो हम लोग डीएमए ऑपरेशन डिस्कस किए, तो डीएमए ऑपरेशन में जब आपका डीएमए ऑपरेशन जब डिस्कस किए तो इसमें बस्ट मोड क्या होगा? जब आपका डीएमए कंट्रोलर को कंप्लीट कंट्रोल चाहिए होगा, यानी व्हेनेवर द डीएमए कंट्रोलर नीड अ कंप्लीट कंट्रोल ऑफ सिस्टम बसेस. So this is the DMAC. This is the memory.
This one is the disk controller, and we have buses like so you can say this one is the burst mode. So this mode of data DM operation is the burst mode of data transfer. That means in burst mode of data transfer, DMA control switch over the control to the microprocessor only on completion of entire data transfer, irrespective of microprocessor requiring the bus. तो बस्ट मोड का जरूरत कब होगा? whenever there is a block data transferring is needed by DMA controller. तो आपका DMA कंट्रोलर को पूरा सिस्टम बसेस का कंप्लीट साइकिल चाहिए होगा, तो उस समय जब आपका DMA कंट्रोलर डेटा ट्रांसफर करेगा मेमोरी और पेरिफेरल के बीच में, तो एवरी कंट्रोल्स इज जनरेटेड बाय द DMA कंट्रोलर, माइक्रोप्रोसेसर इन्वॉल्वमेंट इज नॉट देयर. So in various mode of DMA operation, burst mode is the mode in which total instruction and total system buses is needed to treat it as a memory bus for performing data transfer in between memory and peripherals. So we can say that in burst mode of DMA operation, DMA controller switch over the control to the microprocessor only on completion of entire data transfer operation. That means in this mode, CPU regain the control over the system buses once the DMA operation is over and
DMA request is withdrawn by the DMA controller. That means ये जो आप हम लोग डिस्कस किए, तो बस्ट मोड में क्या होगा कि जो डीएमए ऑपरेशन हम लोग देखे यहाँ, इस डीएमए ऑपरेशन में बस्ट मोड में क्या है, यू जस्ट सी हियर कि ऑल द सिस्टम बसेस आर रीडायरेक्टेड टू द डीएमए कंट्रोलर once the bus grant is given by the 8086 microprocessor. So DMA controller gets the authority and the block data transferring occur in case of burst mode of data transferring. The second one is the cycle stealing. What do you mean by cycle stealing? सो जब सर स्मॉल डेटा को सर ट्रांसफर करना होता है डीएमए कंट्रोलर को, तो उस समय जो कि बसेस को शेयर किया जाता है सीपीयू के साथ और डीएमए के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। और साइकिल, हाँ, साइकिल स्टीलिंग इसलिए कहा गया है कि जो रनिंग इंस्ट्रक्शन साइकिल है, उसी इंस्ट्रक्शन साइकिल में आपका जो बसेस का यूटिलाइजेशन डीएमए ऑपरेशन के लिए हो जाता है, क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफर नहीं करना है, तो कंप्लीट सिस्टम बसेस का कंट्रोल डीएमए कंट्रोलर होल्ड नहीं करता है। वो रनिंग इंस्ट्रक्शन साइकिल में ही आपका जो है डायरेक्ट डेटा ट्रांसफरिंग अकर कर लेता है सिस्टम बसेस को यूटिलाइज करते हुए। ठीक है ना। तो माइक्रो प्रोसेसर जो है नीड नॉट माइक्रो प्रोसेसर मतलब डीएमए कंट्रोलर नीड नॉट नीड नेवर नीड कंप्लीट डीएमए मतलब कंप्लीट आपका जो है ऑपरेशनल सिस्टम बसेस रिक्वायरमेंट उसको नहीं चाहिए, वो अपने रनिंग इंस्ट्रक्शन से ही आपका है। तो डीएमए नीड टू मेक द बीजी रिक्वेस्ट फॉर ईच बाइट, यानी कि जब भी आपको इंस्ट्रक्शन साइकिल स्टीलिंग मोड में आपका जब डीएमए कंट्रोलर काम करता है, तो क्या करेगा, आपका जो बस ग्रांट आपका जो है बीजी रिक्वेस्ट जो है, वो हर बाइट बाय बाइट आपका जो इंस्ट्रक्शंस जो है रनिंग इंस्ट्रक्शन के साथ एग्जीक्यूट कर लेगा, यानी कि मूव करा देगा डाटा। तो डीएमए कंट्रोलर बेसिकली रिलिंग्यूज द कंट्रोल टू माइक्रो प्रोसेसर ऑन ट्रांसफर ऑफ एवरी बाइट, यानी हर बार वो क्या करेगा, जैसे अभी क्या हुआ बस्ट मोड में लंबे समय तक वो जो है बस रिक्वेस्ट को विड्रॉ नहीं करता है और डीएमए को इनिशिएट करता है। लेकिन यहाँ पर साइकिल स्टीलिंग में क्या है कि एक डेटा को ट्रांसफर, एक इंस्ट्रक्शन को ट्रांसफर करने के बाद वो रिलीज कर देता है, यानी कि नेक्स्ट के लिए वो रिलीज कर देता है। एक मिनट कॉल आ गया।
Now the cycle stealing mode you can mention. In this mode of DMA operation, DMA controller release the control to the microprocessor on transfer of every byte. यानी ड्यूरिंग ट्रांसफरिंग वो हर बार एक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होने के बाद वो रिलीज कर देगा और आपका जो है देयर बाय माइक्रो प्रोसेसर अब इसमें क्या है बेसिकली डीएमए ऑपरेशन इस मोड में डीएमए ऑपरेशन में हर बार डीएमए कंट्रोलर एक बाइट ऑफ इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करने के बाद कंट्रोल को रिलीज कर देता है माइक्रो प्रोसेसर को। इसका मतलब है कि अगर आपको डीएमए ऑपरेशन को साइकिल स्टीलिंग मोड में इम्प्लीमेंट करना होगा डीएमए तो डीएमए को हमेशा ये आवश्यकता होगा बीजी। Sir, your voice is not clear, sir. आवाज नहीं जा रही है। That's why there is some network issue today. 2 बजे भी 2 बार कनेक्ट करने की कोशिश की हो नहीं पा रहा था। ओके ये जो लिख रहा है दिख रहा है ना? Yes, sir. और सर यस सर yes क्या sir, आवाज आप- यहाँ लास्ट लाइन में से क्या लिखे हैं एंड बिकम एबल टू प्रो। हाँ बता रहे हैं कहाँ पर साइकिल स्टीलिंग में सर Yes, sir, लास्ट last लाइन में line. साइकिल लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि इन पूरा बता देते हैं बेसिकली आपका डीएमए ऑपरेशन साइकिल स्टीलिंग में क्या हर बार एक स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा को ट्रांसफर करने के बाद माइक्रो डीएमए कंट्रोलर जो है वो सिस्टम बसेस को रिलीज कर देता है तो माइक्रो प्रोसेसर उस दौरान आपका ट्रांसफरिंग ऑपरेशन को कंटिन्यू कर लेता है यानी कि माइक्रो प्रोसेसर अपना कंट्रोल गेन कर लेता है माइक्रो गेट्स द कंट्रोल एंड बिकम एबल टू प्रोसेस हाईली प्रायोरिटाइज्ड मतलब जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाइज जो इंस्ट्रक्शन है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोसेसर आपका जो है वो बसेस का यूटिलाइजेशन कर लेता है क्योंकि बसेस कंप्लीट डीएमए कंट्रोलर के हाथ में नहीं रहता है। डीएमए कंट्रोलर पार्ट ऑफ द टाइम बसेस का यूज करके फिर उसको रिलीज कर देता है। जैसे ही रिलीज करता है तो कंट्रोल बस जो कंट्रोल आपका जो है वो सीपीयू के हाथ में आता है और फिर सीपीयू उसको अपने हिसाब से प्राइवेटाइज जो आपका प्रायोरिटी वाइज जो इंस्ट्रक्शन है उसको हैंडल करने में अपने हिसाब से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो क्या करें। ये हंसरे हलकत
Where are you, sir? हाँ, तो बेसिकली यहाँ पर डीएमए को क्या चाहिए होगा, यहाँ पर डीएमए को बीजी बीजी जो पिन है, फर्स्ट ग्रांट पिन है, जब जब उसको ट्रांसफर करना होगा तो बीजी रिक्वेस्ट जो आपको है उसको बीजी को रिक्वेस्ट करना होगा, यानी बस ग्रांट को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। तो बस ग्रांट के लिए वो बार बार क्या करेगा, बीआर पिन से रिक्वेस्ट भेजेगा और इमीडिएटली रिक्वेस्ट को विड्रॉ भी करेगा, क्योंकि उसको बल्क ट्रांसफर करना नहीं है। तो जैसे ही वो रिलीज करेगा, रिक्वेस्ट को विड्रॉ करेगा, तो बीजी रिक्वेस्ट भी आपका विड्रॉ हो जाएगा। तो बीजी रिक्वेस्ट, ग्रांट एंड रिलीज ये कंटिन्यूअसली चलेगा जब भी पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन आपको सेंड करना होगा। एंड द थर्ड वन इज, Sir, due to this, sir, this mode is time taken. यस बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब अगर आपको स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफर करना है मेमोरी पेरिफेरल के बीच में, तो डीएमए ऑपरेशन को इनिशिएट करना होगा, लेकिन ये थोड़े देर के लिए होगा, Yes, sir. ठीक है ना, लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम नहीं चाहिए होगा। तो इसलिए पैरेलली दोनों चीज चलेगा, आपका सीपीयू भी वर्क करेगा और डीएमए कंट्रोलर भी वर्क करेगा। जब डीएमए कंट्रोलर को डीएमए इनिशिएट करना होगा तो वो आपका रिक्वेस्ट सबमिट करेगा, और जब उसका काम हो जाएगा उसको विड्रॉ करेगा। जब सबमिट करेगा तो बीजी रिक्वेस्ट ग्रांट हो जाएगा, बीजी पिन के थ्रू रिक्वेस्ट ग्रांट हो जाएगा, और जैसे ही विड्रॉ करेगा तो ये भी डिजेबल हो जाएगा। ये आपका कॉन्करेंटली चलेगा जब भी आपको साइकिल स्टीलिंग मोड में डीएमए ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा। अब तो तीसरा मोड है, दैट इज द ट्रांसपेरेंट मोड। व्हाट डू यू थिंक एज पर द नेम इज कंसर्न, ट्रांसपेरेंट? सर ट्राई कर सकते हैं सर बोल के। हाँ बोलिए। ये सर इसमें भी सर सिस्टम बसेस तो सर पूरा ही हायर करता होगा डीएमए, बट सर जब हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस आता होगा उस समय सर सीपीयू अपना ग्रांट डिसेबल कर लेता होगा, और जैसे ही ऑपरेशन खत्म हो जाता होगा तो फिर से वो उसको ग्रांट कर देता होगा डीएमए को। एक्चुअली ठीक बोले आप। इन दिस मोड डीएमए कंट्रोलर कैन ट्रांसफर डेटा ब्लॉक्स। यहाँ भी ओनली कब ये ट्रांसफर करेगा डीएमए कंट्रोलर, ओनली व्हेन माइक्रो प्रोसेसर आर एग्जीक्यूटिंग सच इंस्ट्रक्शन दैट डज नॉट रिक्वायर सिस्टम बस यूटिलाइजेशन। तो जब वो किसी सिस्टम बसेस का यूटिलाइजेशन करना चाहेगा तो प्रायोरिटी हाई होगा, जो आप बताए। और जब प्रायोरिटी हाई होगा तो वो विड्रॉ कर लेगा, कभी भी वो अपने काम के लिए डीएमए सेशन को रोक कर अपना काम कर लेगा। तो बेसिकली इन दिस मोड
है ना. So these are the three modes in under which the DMA operation is initiated. Now we already have the diagram, that is the DMA controller. DMA controller जहाँ पर आपका काम कर रहा है. अब यहाँ पर क्या है कि इसी डायग्राम में आपका जो है साइकिल स्टीलिंग में क्या होगा, यहाँ इसको डॉटेड लाइन से दिखा देंगे. ठीक है ना, ये जो आपका एरो है इसको डॉटेड लाइन से दिखा देंगे यहाँ पर. तो ये इसका मतलब हो जाएगा कि ये जब आपका डीएमए इनिशिएशन का जरूरत है, डीएमए कंट्रोलर रिक्वेस्ट भेजेगा और जैसे ही रिक्वेस्ट भेजेगा बस ग्रांट होगा तो ये बसेस थोड़ी देर के लिए डीएमए कंट्रोलर के लिए रीडायरेक्ट हो जाएगी. तो ये डॉटेड लाइन से अगर आप दिखाइएगा तो ये आपका हो जाएगा साइकिल स्टीलिंग. और ट्रांसपेरेंट मोड मोर और लेस आपका यही होगा, लेकिन यहाँ पर कंट्रोल एक होगा कि वो टोटली अंडर हैंड ऑफ माइक्रो प्रोसेसर होगा. यानी माइक्रो प्रोसेसर को अगर कोई हाई प्रायोरिटी कोई प्रोसेस मिल जाएगा तो उस समय में आपका डीएमए कंट्रोलर को वो कभी भी होल्ड पर भेज सकता है. ठीक है ना, तो बस ग्रांट को वो डिजेबल कर सकता है. तो दीज आर Yes, sir. थ्री मोड ऑफ डीएमए ऑपरेशन. नाउ सर आज इतना ही रहने दीजिए सर, कुछ बाद नहीं आ रहा है सर फोन डिस्चार्ज हो गया सर. सर. आज Yes, इतना ही sir. रहने दीजिए सर. हाँ, आज Yes, थोड़ा sir. सा डिस्टर्बेंस भी है इसलिए थोड़ा यस सर.